Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. On the behalf of Gerizan Academy Senior Campus Gujarat, I Muhammad Aslan Shafiq again welcome you all in AppSex online sport program. And the topic of our today discussion is flowchart. And in this video we will discuss flowchart symbols, problems related to flowchart from problem number 1 to problem number 5. Flowchart symbols. As we studied earlier, flowchart is the diagrammatic representation of algorithms. So we need some symbols to draw flowchart, and for this purpose we use a special type of symbols which we can use to draw flowchart. Flowcharts are drawn using standard shapes. These shapes are you can see in this table. Each shape has specific meaning. Each symbol has specific meaning, and we can connect each symbol with the help of flow lines. Here you can see the first shape that we studied today is flow line, and shape is like this, a line with an arrowhead which is used to connect various types of flowchart symbols. बेसिकली फ्लो लाइंस को हम एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं. देन वी हैव स्टार्ट एंड स्टॉप. दिस इज बेसिकली अ राउंडेड shape, a rounded rectangular that we can use to start or stop. Then we have input, a parallelogram shape that we use to input and output. But remember one thing, we have to write input or output in this डायग्राम. अगर आप इसको इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर इनपुट लिखेंगे, अगर आप इसको आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आउटपुट जो है वो जरूर लिखेंगे स्टार्ट में. देन वी हैव प्रोसेस सिंबल. दिस सिंबल इज लाइक अ रेक्टेंगल शेप. कोई भी काम जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमें प्रोसेस करना है, लाइक दो नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करना या कुछ भी प्रोसेस करना, तो वो हम जो है वो प्रोसेस सिंबल के अंदर करते हैं, इस सिंबल रेक्टेंगल शेप के अंदर करते हैं. देन वी हैव डिसीजन शेप. दिस इज आवर डिसीजन शेप. डिसीजन शेप आपके पास डायमंड टाइप शेप है, और डायमंड टाइप शेप इसके अंदर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं. डिसाइड मीन दैट यहाँ पे दरमियान में आपके पास कंडीशन आ जाती है, कंडीशन राइट कर दें हम यहाँ पे. अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो कोई काम परफॉर्म होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो कोई और काम जो है वो परफॉर्म होता है. Then we have connector. Connector is a symbol that is used to connect more than two shapes with each other. There are two types of connector. One is on page and one is off page. On page means that आपके पास अगर डायग्राम एक ही पेज के ऊपर है तो आपने उस एक ही पेज के ऊपर 3 या 4 शेप्स को एक शेप के साथ कनेक्ट करना है तो हम कनेक्टर यूज करेंगे. और अगर आपकी डायग्राम बड़ी हो जाती है, वो 2 पेजेस पे आ जाती है, तो उसके लिए फिर हम ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो यूज करते हैं. As we study flow lines, it is a line with arrowhead used to connect various flowchart symbols and indicate the flow of control in the flowchart. Used to connect various flowchart symbols. और फ्लो लाइंस को हम यूज करते हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए कि अभी फ्लो जो है वो आप कंट्रोल आपका यहाँ से कहाँ पे मूव किया, किस डायग्राम से किस डायग्राम पे मूव किया. Then for this purpose we use a flow line. Start and stop symbols, a rounded rectangular shape as I discussed. It is used to indicate the start or end of a flowchart. We can only write the word start or stop inside this symbol. Remember this one thing, that we only write start or stop. We only write start or stop in this symbol. In this symbol, start or stop symbol. And also remember one thing about start and stop symbol, that every flowchart must have start or stop symbol, and every flowchart has only one start, but it have many ends. As you can see, only have one start, but it may have many ends. तो ये किस तरह इसके जो है वो एंड्स ज़्यादा हो सकते हैं, ये आगे जब हम फ्लो चार्ट को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे. जब आपके पास ज़्यादा जो है वो डिसीजन आ जाती हैं तो आप एक ही फ्लो चार्ट को ज़्यादा दफ़ा भी एंड कर सकते हैं. इनपुट और आउटपुट सिंबल. पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस.
it contain the word read or input along with the variable for input operation, or print or output along with the output data for output operation. We must have to write input or read or output or print in this symbol, because of that we can differentiate it in input और output. हमें ये दोनों में से must लिखना ही लिखना है, या तो हम input लिखेंगे या read लिखेंगे for input purpose, or we write print or output for output purpose. Then we have process symbol. A rectangular block is used for any data processing operation. Rectangular block that is used to calculating, or that is used to process everything. All the calculations appear inside the process symbol, such as sum is equal to a plus b. ये sum is equal to a plus b जो है आपके पास, ये बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस जो है वो कोई भी है हम इस प्रोसेस सिंबल में लिखेंगे. इट आल्सो इनिशियलाइज मीन दैट कि आपने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है. तो जब आप वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं तो ये भी बेसिकली एक प्रोसेस हो रहा है. तो सो दैट्स व्हाई वी राइट इट इन प्रोसेस सिंबल लाइक k is equal to 1. Then we have decision symbol, a diamond shape that represent decision in flowchart. It contains a condition. आप पास जब भी डायमंड शेप आ जाएगी, जब भी कंडीशन आ जाएगी, हम उसको डायमंड शेप के अंदर लिखेंगे. और कंडीशन जो है वो आपके पास, उसकी दो ही जो है वो आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो वो काम आपका हो जाएगा या आपका काम वो नहीं होगा. लाइक एज मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, या तो आपके पास मार्क्स जो है वो 33 से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, एक ट्रू है और एक फॉल्स है. तो जब आपने डिसीजन लेना है तो फिर जो दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास निकलती हैं, आपने उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है कि अगर वो ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, द पाथ मार्क यस इज टू बी फॉलोड. तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो जिसको हम यस के साथ फॉलो मार्क करेंगे, जिस पाथ को, वो वाला पाथ फॉलो होगा. एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द पाथ मार्क्ड नो इज टू बी फॉलोड. तो जो नो के साथ मार्क होगा वो वाला हम फॉलो करेंगे अगर आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है. रिमेंबर वन थिंग दैट वी कैन आल्सो राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द प्लेस ऑफ यस और नो. Then we have connector symbol. The symbols are used to connect one part of a flowchart to the other on the same page. एक पेज के ऊपर अगर आपने कनेक्ट करना है, then for this purpose we use one page on page connector, or if we have to connect in different pages then we use off page connector. Flowchart 1. To find the sum, product and average of a 5 number. बेसिकली ये जो हम यहाँ फ्लो चार्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे हम जो बनाएंगे वो हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हैं हमारे, ये उनके ही फ्लो चार्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली ये तमाम फ्लो चार्ट्स की लॉजिक्स हमारी ऑलरेडी क्लियर हैं. हम उसको इन्हेंस करेंगे यहाँ पे और उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे. सो वी हैव टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स. बेसिक जो था वो हमारे पास ये था कि हम पहले 5 नंबर्स को इनपुट करवाएंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, देन वी हैव टू आउटपुट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज. फॉर दिस स्टार्ट फ्रॉम आवर एल्गोरिदम. फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट आवर एल्गोरिदम. each and every algorithm must have a start. तो we have to start करेंगे हम. उसके बाद हम जो है वो पैरेललोग्राम शेप के अंदर इनपुट जो है वो हम करेंगे. इनपुट 5 नंबर्स A, B, C and D and E. Then we have at third step we have to calculate sum, product, average. For this purpose, because this is a process, we use process symbol, that is a rectangle shape. Sum is equal to A plus B plus C plus D plus E. Product A static, B static, C static, D static, E, or we have to find average, that is sum is divided by 5. After processing this or calculating this, we have to output, and for the output purpose we again use our parallelogram shape, but we have to write output or input in this symbol to show that what either it is used for output or either it is used for input. So we have to write output, sum, product and average.
हम आउटपुट करेंगे सम प्रोडक्ट और एवरेज को। जैसे ही हमारे पास आउटपुट है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम खत्म, देन वी हैव टू स्टॉप। Flowchart number 2, to find the largest of three unequal numbers. First of all, I explain its logic. We have to input three number from the user, then we have to check that which number is largest one. For that purpose we check if A is greater than B or A is greater than C, then A is largest one. If B is greater than A, B is greater than C, then B is largest one. Or if C is greater than A, C is greater than B, then C is largest one. So exactly same logic as an algorithm we see in algorithm 2, or we see in problem number 2. For this, first of all, we have to start our algorithm. Start is must in every algorithm. So firstly we have to start. After start we have to input. For input purpose we use parallelogram shape. As you know, parallelogram shape is used for input or output purpose, but we have to write input or output in the shape. तो इनपुट लिखना यहाँ पे जरूरी है, तो हमें इनपुट करवाया इनपुट A, B and C. After input we have to check either which number is greater, A, B or. Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. On the behalf of Gerizan Academy Senior Campus Gujarat Development, I Muhammad Aslan Shafiq again welcome you all in AppSex online sport program. And the topic of our today discussion is flowchart, and in this video we will discuss flowchart symbols, problems related to flowchart from problem number 1 to problem number 5. C. For this purpose condition is placed, और जहाँ पे कंडीशन आ जाती है उसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड शेप को। डायमंड शेप की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास, या तो वो आपका ट्रू होगी कंडीशन, या वो आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी। और दो पॉसिबिलिटीज जब आपके पास निकल जाती हैं तो आपके पास इसके दो रास्ते बन जाएंगे। अगर तो आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो वो अलग पाथ फॉलो करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो अलग पाथ फॉलो जो है वो आपके पास करेगा। तो यहाँ पे आप देखें इनपुट के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आए हमने कंडीशन चेक की A इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C. इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो जाती है तो हमने येस वाला जो पाथ है वी हैव मार्क्ड अ पाथ विद येस। तो अगर येस वाला जो है वो आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो येस वाला जो पाथ है वो आपके पास फॉलो होगा, एंड येस वाले पाथ में आपके पास क्या है, आउटपुट A. For output we use again parallelogram shape, because parallelogram shape is for input and output purpose. And if the condition is false, अगर आपके पास कंडीशन गलत हो जाती है तो हम फॉलो करेंगे फिर नो वाला पाथ जो हमने नो के साथ मार्क किया हुआ, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। और इससे आगे हम चलते हैं तो अगेन A को हमने चेक कर लिया, अगर तो वो A आपके पास था, वो आउटपुट लार्जेस्ट नंबर था, तो आपके अब आप बाकी वाले दो नंबर्स को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने जस्ट उसको आउटपुट करवाया और देन प्रोग्राम स्टॉप करवा दिया। एंड इफ A इज़ नॉट लार्जेस्ट नंबर देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू find B or C which number is largest one. So again we check B is greater than A and B is greater than C, and if the condition is true then the path followed marked by yes, and we have to output. Again use parallelogram for output purpose. And if the condition is wrong, अगर कंडीशन आपको गलत हो जाती है तो हम नो मार्क जो किया हुआ था हमने वो वाला पाथ जो है वो फॉलो करेंगे, और वो पाथ आपके पास ये कुछ इस तरह जो है वो आपके पास आ रहा है। देन अगेन आउटपुट C। थर्ड टाइम हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ A इज़ नॉट ग्रेटर, B इज़ नॉट greater than C, A is not greater than C, it's definitely mean that कि C is greater than A and B। तो अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस गलत हो जाती हैं तो हम आउटपुट करेंगे C को। यहाँ पे देखिए हमने कनेक्टर सिंबल यूज़ किया हुआ। अब
हम बात कर रहे थे कि किसी एक प्रोग्राम के दो या दो से ज़्यादा एंड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एंड भी हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो अगर हम ये वाले तरीका मेथड फॉलो नहीं करते, जो बुक ने बनाया है कनेक्टर का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो इसको यहाँ पे भी स्टॉप करवा सकते थे। हम इसको यहाँ पे भी स्टॉप करवा सकते थे। इसी तरह इसका अलग से स्टॉप करवा सकते थे, हम इसका अलग से स्टॉप करवा सकते थे और इसका अलग से स्टॉप करवा सकते थे। इट्स मीन दैट कि एक फ्लो चार्ट में आपके पास 3 स्टॉप्स जो हैं वो आ जाने थे। तो हमने अपनी वर्किंग रिड्यूस करने के लिए कनेक्टर यूज़ कर लिया। कनेक्टर 3 जो है वो डिफरेंट किस्म के एंड्स थे और उनका जो आगे से एंड होना था वो एक था, सेम था, उनकी आउटपुट सेम थी। तो फॉर दिस पर्पज़ वो यूज़ कनेक्टर यूज़ करके हम तीनों फ्लो लाइंस को कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया और तीनों का स्टॉप करवा दिया। अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो इस पाथ के ज़रिए वो आपके पास स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास ये वाला पाथ जो है वो फॉलो होगा, और अगर आपके पास दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो आपके पास ये लास्ट वाला जो पाथ है वो फॉलो हो जाएगा। That's all for today. Thank you very much.